Hello everyone, I hope you are doing well. I am BK Kobre, Faculty of Information Technology. So let's start with our first chapter, that is the basics of information technology. So first we see what introduction to IT, what is the introduction to information technology, and then move our remaining topics. So let's move. Information technology has great influence on all aspect of life. Almost all workplace and living environments are being computerized and the use of information technology is being enhanced. हमारी लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है. ऑलमोस्ट आजकल हर वर्क प्लेस में या फिर हर कंप्यूटराइज, क्योंकि हम जो रह रहे हैं हम कंप्यूटराइज वर्ल्ड में रहते हैं, राइट. सो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आज हर चीज़ को बाइंड किया गया है. सो let's see what is the definition of information technology. IT encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect, and store information. It refers to hardware and software and the computer networks. Okay, IT IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिटेल्स हमारे पास होना, राइट. सो हम उसे कलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं. बट ऑल दिस मैनेजमेंट इज अंडर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, what is ICT? It is the information and communication technology. This concept involves transfer and use of all kinds of the information. ICT is the foundation of economy and a driving force of social changes in the 21st century. Right? Distance is no longer an issues when it comes to accessing information. आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सी चीज़ें इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट. जो भी हाँ एक जिस एक प्रीवियसली 80s 90s में जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी आज वो पॉसिबल हो पा रही है, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. आज हम लॉन्ग डिस्टेंसिंग में भी बात कर सकते हैं. So that is the importance of the information technology, right? So next topic is data and information. It is it is being said that terms data and information are interchangeable and means the same thing. However, they are not same and there is a difference between the two words. Okay, two words. Data can be any character, text, word, number, or raw facts. However, information is the data formatted in a manner that allows to be utilized by human being in some significant way. देखिए, हम समझते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो भी है ये दोनों सेम चीज़ है, बट दे हैव सम डिफरेंसेस, दे हैव डिफरेंस. डेटा मतलब क्या होता है कि एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है. एक रॉ इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं. बट इंफॉर्मेशन क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हैव सम देयर डिजायर्ड आउटपुट. मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो किसी चीज़ को डिराइव करती है, राइट. इंफॉर्मेशन किसी चीज़ को डिराइव करती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा. ओके, so data is the raw of information. Okay, what is the need of information? Information is required to take the short term and long term decisions, right, and also make the strategic decisions in an organization. Since we live in the information age, the information technology has become
अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन की मदद से हम किसी स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, या फिर जो भी है डिसीजंस प्रॉपरली ले सकते हैं। जो भी हमारे पास डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप जनरल लाइफ में सोचिए, अगर हमें किसी विलेज को विजिट करना है, तो हम विजिट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं, राइट? हमें जाना कैसे है, राइट? हमें बस से जाना है, कैसे जाना है, उसका उसका रोडवेज, उसका रूट कैसा है, उस वहाँ तक जाने का, डेस्टिनेशन तक पहुँचने का हमारा रूट कैसा है, राइट? एंड देन वी सम टेक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट विलेज ऑल्सो। सो that is the information, and we take on decision whether we go or not. That is the decision, and that is depend on that information. Okay, so ये तो सब जनरल इंफॉर्मेशन हो गई अपनी। वेरियस कंसेप्ट अंडर आईटी। ओके, सो अब हमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम जो बात कर रहे हैं, हमें उस एस्पेक्ट में सोचना है जिस एस्पेक्ट में हम वर्क करने वाले हैं, दैट इज द कंप्यूटर वर्ल्ड, राइट? So there is some concepts under the IT which will be discussed on this slide. Computer. The word computer is derived from a Latin word computere, which means to calculate, to count, to sum up, to think together. And electronic device which expect input from the user, process it according to the instruction given to it, and gives the required result to form of आउटपुट इन कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर को सबसे पहले जो ये वर्ड जहाँ से आया है उसे वो एक लैटिन वर्ड है, दैट इज द कंप्यूटर, विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप, टू थिंक टुगेदर, राइट? अब ये जो कंप्यूटर है, ये एक हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब हम जो कंप्यूटर को बताएंगे वो करेगा, राइट? हम उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे हमें अभी हमें सिंपल कॉपी करना है, कोई डेटा कॉपी करना है, तो वो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन ही हो गया, राइट? हम उसे क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो फिर उसका डिजायर्ड आउटपुट हमें देता है, दैट इज द कंप्यूटर। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर का, अगर हम सोचे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? कंप्यूटर सिस्टम। A computer can be process data, image, audio, video, and graphics. A computer perform five major computer operation or functions respect to their size and make. Okay. अब क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हर चीज़ को करता है, राइट? दैट इज वॉट एवर द डेटा, दैट मे बी इमेज, ऑडियो, वीडियो, और एनीथिंग, ग्राफिक्स, एंड वॉट एवर इट बी, all these things are processed in the computer system. Okay, so उसके कुछ ऑपरेशंस है और फंक्शंस है जो वो परफॉर्म करता है, जो उसके मेन ऑपरेशंस है, राइट? जो सो हम देखते हैं। इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। कंप्यूटर जो भी डेटा या कुछ भी लेता है, राइट? जो भी डेटा हम उसे प्रोवाइड करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो क्या होता है? उसके लिए इनपुट होता है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वन इज द इनपुट एंड सेकंड वन इज द आउटपुट। इनपुट हम यूज़र इनपुट देता है, एंड जो भी कंप्यूटर है वो आउटपुट जनरेट करता है, राइट? दैट इज द मेन थिंग। इस बात को समझ लो। वी गिव्स द इनपुट टू द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट प्रोसेस द डेटा एंड गिव आउटपुट टू द that input। ओके, आउटपुट मतलब क्या होगा? उसका रिजल्ट हो गया, राइट? सेकंड वन इज द इट स्टोर्स द डेटा, राइट? हम
कोई भी डेटा है जो वो स्टोर कर सकते हैं. डेटा मतलब रॉ इंफॉर्मेशन, राइट? सो वी स्टोर डेटा ऑल्सो. एवरीथिंग इज डेटा. एवरीथिंग इज डेटा. जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो भी हमें वर्ड्स मिलते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, व्हाट आर देयर, दैट ऑल आर द डेटा. ओके. इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. जो भी हमें ऑपरेशंस करने होते हैं उसके ऊपर, जैसे हमें कोई फाइल क्रिएट करनी या फिर उसमें कोई कैलकुलेशंस करने हैं, सो उसी तरह से वो कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, राइट? उस डेटा को प्रोसेस करता है जैसे यूज़र को रिक्वायरमेंट है, राइट? इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, मैंने जो अभी कहा था. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर. अब ये देखिए, अभी हमने रिजल्ट डेटा तो दे दिया, इनपुट इनपुट कर दिया है उसमें डेटा, और वो उसने जो भी है वो आउटपुट भी जनरेट करेगा, राइट? बट उसके बीच में जो होता है, जैसे कि उसके कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि उस डेटा को प्रॉपर मशीन में इनपुट करना, राइट? उस ओवरऑल डेटा को प्रोसेस करना, राइट? या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं उसको परफॉर्म करना. ये सब जो है ये इंटरनल ऑपरेशंस है उसके. अब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो तो उसके वर्ड उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, क्योंकि मशीन मशीन को सिर्फ दो ही चीज़ें समझती है, ऑन और ऑफ. दैट इज दिस सिग्नल, दैट इज द टू सिग्नल्स, दैट इज वन इज द ऑफ एंड अनदर इज द ऑफ. So it don't have concern with whatever the data. Okay, so they convert that data into that number system or that signals and process on behalf of user. Okay, so it controls all the operation inside a computer. Okay, so हम कंप्यूटर सिस्टम का एंड पेरिफेरल्स का इसका कुछ देख लेते हैं. इसमें जो डायग्राम दी है, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, आपको सबको पता ही होगा ये, बट अगेन वी डिस्कस अबाउट दैट. ओके, let's see. Let's start with this. Okay, the from keyboard. So that one is the keyboard, the principal input device used to type the instruction into the computer. ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है. दैट इज द इनपुट डिवाइस. ओके, सो what is used is used to type instruction into the computer. Another is the microphone. It is used to get the spoken input. हम जो भी इनपुट पास करने वाले, जो वॉइस इनपुट है, वॉइस इनपुट को पास करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दैट इज द माइक्रोफोन. स्पीकर इज द आउटपुट ऑडियो डिवाइस. जो भी हमें जो भी आउटपुट वॉइस फॉर्म में चाहिए, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पीकर्स. मॉनिटर. मॉनिटर as an the output device that lets you see your work as go. Okay, CD, DVDs, drive reads CD, DVD are the disk. It is also the input device. Okay, system unit. Main thing is the system unit, right? The case of that contains the CPU. अभी अब देखिए, आज तक हम क्या समझते थे कि ये जो बॉक्स है ये CPU, but that is wrong. CPU is the small thing in that box because it have many circuits, many boards, many storage devices put into that box. Okay, और CPU एक छोटा सा डिवाइस होता है, राइट? एक छोटा सा एक बॉक्स की तरह होता है. प्रोसेसर आपने देखा होगा. सीपीयू सीपीयू क्या है? सीपीयू प्रॉपरली क्या है? रैम. जो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, रैम होती है, रोम होता है, राइट? बट सीपीयू इज द ओनली सिंगल थिंग विच इज वेरी स्मॉल. ओके, हम आगे में देखेंगे और सीपीयू क्या होता है. The case that contains the CPU memory, the power supply, disk drives, and all other hardware such as the modem that are in the internal format. अब
ये जो सिस्टम यूनिट है इसमें हम इसे कंटेनर बॉक्स भी कहते हैं, राइट? इट इज नॉट अ सीपीयू. ओके, दिस इज रॉन्ग थिंग that it is CPU. Is not CPU. प्रिंटर, इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सुना होगा कि हमारे पास ये वाला माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम है, राइट? सो दैट माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज द सीपीयू. ओके. प्रिंटर, इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द कंप्यूटर आउटपुट. अब जो भी हमें प्रिंटेड फॉर्मेट पे चाहिए, सो that printed format is that printed output is formed by the printer. Okay. And in system unit there is a one thing is present which the, one device is present that known as the hard drive, which is located inside the system unit, which is stored to program and data. Okay. Hard disk, right? हम हार्ड डिस्क बोल सकते हैं. फ्लैश ड्राइव, flash memory. Card reader, it is used to read the flash memory of card. And again, flash memory used to capture either still picture or motion videos. ये सब डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग एक वर्किंग है. सिर्फ एक बार देख लो, बाकी कुछ नहीं. मेन थिंग इज और माउस. इट इज़ अ पॉइंटर डिवाइस. अब देखिए, जो भी हम वर्किंग इसमें करते हैं उसके लिए सबसे मेन थिंग होती है कीबोर्ड. कीबोर्ड, ओके. सो कीबोर्ड के अलावा इसमें ऐसा कुछ अगर नहीं भी रहा तो भी चलेगा, अपार्ट फ्रॉम मॉनिटर. बट माउस इज द पॉइंटर इज यूज टू मेक स्क्रीन सिलेक्शंस. इसमें ये क्या, माउस का हेल्प इसलिए हो जाता है कि हमें बार बार जो कमांड्स है वो देने नहीं पड़ते, राइट? सो हम माउस की हेल्प से जो भी हमारा टाइम, जो हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? CDs, DVDs and discs commonly used to deliver program answer store large multimedia files. जो भी multimedia files है उसे store करने के लिए हम CD, DVDs, disc का use करते हैं, right? It is also the storage device, okay, to store the data, okay, and it acts as an input device, okay. So student, we stop here. In next video we see what is the architecture of computer and what are the all these things: input unit, memory, primary memory, secondary memory, output unit. Okay, so uh, stay safe. Goodbye.